الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ اصحاب فرائض کے احوال اور ان سے متعلقہ مشق تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم اصحاب فرائض کے حوال ایک دوسرے انداز سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ انداز کتب فقہ میں جیسے قدوری کنز وغیرہ میں اختیار کیا گیا ہے، اور وہ انداز ہمارے طریقے اور ہمارے انداز کے لحاظ سے وہ مشکل نہیں ہے۔ جب آپ کو ہمارا طریقہ اور ہمارا جو اسلوب ہے وہ سمجھ آگے آپ نے سیکھ لیا، تو اس کے بعد جو کتب فقہ کا انداز ہے ان کا اسلوب بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو وہی چیز ہے، نوع اول نوع ثانی۔ نوع اول میں جو سہام یعنی حصے آتے ہیں وہ ہیں نصف ربع ثمن، نوع ثانی میں سدسان سدس اور سدس، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ پہلا جو میں نے وہ گروپ بیٹی پوتی حقیقی بہن الاتی بہن، وہ 4 عورتیں جو اسباب الغیر میں آتی ہیں، یہ ہمارا اصحاب فرائض کا پہلا گروپ تھا۔ ہم نے 4 گروپوں میں اصحاب فرائض کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروپ جو اسباب الغیر میں خواتین اور عورتیں آتی ہیں، یعنی بیٹی پوتی حقیقی بہن الاتی بہن، یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ ہے زوج اور زوجہ کا، اور تیسرا گروپ ہے ماں خیافی بھائی خیافی بہن، کیونکہ خیافی بھائی بہن کا رشتہ ماں کے ذریعے سے میت کے ساتھ جڑتا ہے، اس مناسبت سے ان کا ایک گروپ بن گیا۔ اور چوتھا گروپ ہے باپ جدے سے ہی جدہ سیاہ، کیونکہ جدے سے ہی یا جدہ سیاہ کا رشتہ باپ کے ذریعے سے جڑتا ہے، یعنی جدہ سیاہ جب دادی ہوگی تو باپ کے رشتہ جڑے گا۔ اگرچہ جدہ سیاہ نانی بھی ہے لیکن مین وجہ رشتہ باپ کے ذریعے سے جڑتا ہے، تو اس لیے ان کا ایک گروپ بن گیا۔ خیافی بھائی بہن کا رشتہ ماں کے ذریعے سے، جدے سے ہی جدہ سے کا رشتہ باپ کے ذریعے سے میت سے جڑتا ہے، تو اس مناسبت سے ان کا ایک گروپ ان کا ایک گروپ، تو یہ گروپ بن گئے 4، نمبر 1 گروپ، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4۔ اب ان گروپوں میں جو اسبات ہیں ان کی تھوڑی ہم نشاندہی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں احوال کے بیان کرنے میں آسانی ہو۔ تو اسبات کی 3 قسمیں ہیں، اسبات نسبیہ کی، بنفس ہی، بغیر ہی، مع غیر ہی۔ تو اس میں دیکھیں کہ بنفس ہی، اس میں صرف مرد آتے ہیں، عورتیں تو ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو 4 عورتیں ہیں، اسباب بنفس ہی میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ زوج زوجہ، ان میں زوج مرد تو ہے لیکن وہ پورا جو نقشہ ہے اسباب بنفس ہی کا، پہلا جزء میت، پھر اصل میت، پھر جزء اب المیت، جزء جد المیت، اس میں یہ نہیں آتا زوج۔ اور ماں خیافی بھائی بہن، اس میں خیافی بھائی ہے مذکر ہے، وہ بھی نہیں آتا، کیونکہ خیافی ان کی جو تعریف تھی اسباب بنفس ہی کی کہ نمبر 1 مرد ہو، نمبر 2 جب میت کے رشتہ جوڑیں تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہے۔ تو یہ تو عورت ہے اور اس کا جو واسطہ آتا ہے یہ بھی عورت ہے، اور جدہ سیاہ بھی عورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسباب بنفس ہی میں جو دوسری صنف ہے نا، جزء میت کے بعد اصل میت، اس میں یہ دونوں آتے ہیں باپ جدے سے ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اسباب بنفس ہی لکھ دیا، ان کے 4 اسباب، وہ جو 4 تھی پہلی اسباب بنفس ہی کے بعد اسباب الغیر کی باری ہے، یہ 4 خواتین اس میں موجود ہیں، اور ان 4 کے علاوہ اسباب الغیر میں اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تعریف سے ہی پتہ چلتا ہے اسباب الغیر کی تعریف سے کہ وہ 4 عورتیں، بیٹی پوتی حقیقی بہن الاتی بہن، جب
वो बाई मौजूद हो तो असबाब बनती हैं, बाई ना हो तो फिर, और एक हो तो निसब, एक से ज़्यादा हो तो सुल्सान लेती है। तो इनमें से और कोई असबाब गैर नहीं है। असबाब माल गैर वो सिर्फ ये हकीकी बैन अदाती बैन है, ठीक है, वो इसी के अंदर ही मौजूद है। असबाब गैर में ही चार में से दो, पहली दो बनाती हैं असबाब माल गैर, आखिरी दो बनती हैं। तो असबाब नाम से बगैर माल गैर की भी निशानदेही होगी, इनमें कौन कौन है, ठीक है। ये बिलगैर है, ये दोनों माल गैर भी हैं। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इनके अहवाल को। तो जो कुतुब फ़िक़्ह में असहाब फ़राइज़ के अहवाल बयान करने का तरीक़ है, तो वो तरीक़ ये है कि वो कहते हैं कि ये 6 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से हैं। तो 6 हिस्सों में से हर हिस्सा वो उसकी तफसील बयान करते हैं। मिसाल के पहले यहाँ निसफ़ आ रहा है, तो निसफ़ असहाब फ़राइज़ में से किन किन को किन किन शराइत के तहत मिलता है वो बयान करते हैं। हम भी इसी तरह बयान करेंगे। ये जो निसफ़ है ये असहाब फ़राइज़ में से किस किस फर्द को किस किस कंडीशन यानी शर्त के साथ मिलता है। देखिए, पहला जो ग्रुप है हमारा, बेटी पोती हकीकी बहन लाती बहन, तो इसकी जो तारीफ़ है उसमें क्या आता है कि असबाब गैर वो 4 औरतें हैं कि जो अपने अपने भाई की मौजूदगी में असबाब बनती हैं। तो अगर इनका भाई मौजूद ना हो तो फिर अगर इनमें से कोई एक औरत है तो वो निसब लेती है, एक से ज़्यादा हो तो सुल्सान लेती है। अब इस तारीफ़ के तहत इनके लिए वह यानी जब भाई मौजूद है, ठीक है, तो वे तो असबाब गैर है, ये चारों असबाब गैर है। तो यहाँ हमने देखा निसब किस किस को मिलता है। तो अब निसब इन चारों को मिलता है। जब इनका भाई मौजूद ना हो और ये असबाब गैर ना हो तो फिर निसब मिलता है। अब निसब मिलने की क्या क्या कंडीशन है। बेटी को निसब कब मिलता है कि जब भाई ना हो बेटी का, यानी मैयत का बेटा ना हो और अकेली एक बेटी हो तो उसको निसब मिलता है, ठीक है। अच्छा, पोती को निसब कब मिलता है कि जब बेटा ना हो, क्योंकि बेटे की सूरत में तो महजूब हो जाती है, और बेटी भी ना हो क्योंकि बेटी अगर होगी तो वो पोती को निसब नहीं मिलेगा। तो बेटा बेटी ना हो तो अब उसकी जगह फिर आ जाते हैं पोता पोती। तो बेटी ना होगी तो फिर पोती अगर एक होगी तो इसको निसब मिलेगा। हकीकी बहन को निसब का मिलता है। पहले वही है कि वो असबा पहले महजूब ना हो और असबा फिर गैर भी ना हो, असबा माल गैर भी ना हो। फिर अगर वो एक होती है तो क्या मिलता है? निसब मिलता है। अलादी बहन, इसको निसब का मिलेगा, महजूब ना हो, ठीक है। और फिर जो हकीकी भाई हैं, वो हकीकी भाई जो आ गया ना हाजिब के अंदर, महजूब नहीं है तो फिर जादी बात है कि वो सारे हाजिब बेटा पोता बाप जैसे कोई भी नहीं होगा। फिर असबाब गैर असबाब मगैर वो भी ना हो तो फिर एक हकीकी भाई बहन भी ना हो तो लाती बहन अगर एक है तो निसब मिलता है। तो कंडीशन वही है जो पहले आपने पढ़ी है। तो बेटी को भी हकीकी में लाती बहन चारों को निसब मिलता है, एक निसब मिलता है ज़ौज को। तो कुल कितने अफराद हो गए? 5। ज़ौज को निसब का मिलता है जब मैयत की औलाद ना हो तो ज़ौज को क्या मिलता है? निसब मिलता है। और बेटी को निसब मिलता है जब बेटा ना हो और एक बेटी हो। पोती या बेटा बेटी ना हो और पोता भी ना हो तो अकेली पोती हो, एक हो तो निसब मिलता है। तो हकीकी बहन, इसको भी जब ये ना महजूब है, ना असबाब गैर ना असबाब माल गैर, तो फिर एक है निसब मिलता है। अलाती बहन जब हाजिब ना हो और हकीकी भाई बहन ना हो तो एक अलाती बहन निसब मिलता है। तो ये 5 अफराद को मिलता है निसब। पहला ग्रुप मुकम्मल, बेटी पोती हकीकी बहन अलाती बहन और एक साथ ज़ौज है, ठीक है। उसके बाद जो ज़ौज है इसके अहवाल अब देख लें। अच्छा, रुबो किसको मिलता है, यानी अब हम
उस अंदाज से पढ़ रहे हैं ना, जैसे कुछ भी फिक्र का अंदाज है, तो ये निसब मिलता है 5 अफराद को, 4 ये और 5वां ये, ठीक है। अब रुबो कितनों को मिलता है? ज़ौज को और ज़ौजा को रुबो मिलता है। ज़ौज को रुबो कब मिलता है? जब मैयत की औलाद हो, और ज़ौजा को कब मिलता है? जब मैयत की औलाद ना हो। चाहे रुबो, चाहे निसब हो गया, रुबो भी हो गया, सुमन ये सास ज़ौजा के लिए, जब मैयत की औलाद हो तो फिर ज़ौजा को सुमन मिलता है। ये हो गया मुकम्मल। अब आ गया सुल्सान, ये किन को मिलता है? ये निशान लगाया कि ये मैंने बताया था पहले अपने दुरूस में से एक दर्स में ये पढ़ाते हुए कि ये जो निशान बनाया इसलिए कि यहाँ इनमें से कोई इसका इस हिस्से का हकदार नहीं है। वो असबाब गैर वाली जो 4 औरतें हैं ये उन्हीं के लिए ख़ास है, ये जैसे मौजूद है। तो सुल्सान बेटी को मिलता है जब बेटा ना हो, बेटियाँ एक से ज़ायद हो। पोती को मिलता है जब बेटा बेटी ना हो और पोतियाँ पोता ना हो, पोती एक से ज़ायद हो। हकीकी बहन को मिलता है जब हाजिब ना हो और ना असबा हो, ये गैर ना हो तो एक से ज़ायद हकीकी बहनें हों तो निसब सुल्सान मिलता है। लाकी बहन भी जब हाजिब ना हो, हकीकी भाई बहन ना हो, ना ही असबा हो तो एक से ज़ायद हो तो लाकी बहन को सुल्सान मिलता है। हो गया। आगे है ये 2 ग्रुप हमारे मुकम्मल हो गए। लेकिन हम देख चुके हैं कि निसब 5 अफराद को मिलता है, रुबो 2 को मिलता है, सुमन 1 में मिलता है, सुल्सान उन 4 को मिलता है। अब सुलस ये कितने अफराद को मिलता है? तो ये मिलता है 3 अफराद को। माँ को सुलस कब मिलता है? जब माँ के लिए ना तो सुदस वाली हालत हो और ना ही सुलस माँ बाकिया वाली हालत हो, तो फिर उस माँ को जमी माँ का सुलस मिलता है, ठीक है। अगर ज़ौज और अबावैन या ज़ौजा और अबावैन को छोड़ा है तो फिर माँ बाकी का सुलस। खियामी भाई बहन की हालत इकट्ठी है, मतलब होने का कोई फर्क नहीं है। जब ये महजूब ना हो तो एक से ज़ायद होने कितना मिलता है? और सुलस मिलता है। हो गया मुकम्मल। तो ये 3 ग्रुपों को सुलस मिलता है, अपना 3 अफराद को सुलस मिलता है। अब ये आ गया है, सुलस मुकम्मल हो गया। अब सुलस कितने अफराद को मिलता है? देखें तो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और इनके लिए भी अलाती बहन और हकीकी बहन, इनके लिए भी सुदस की सूरत है। ये कितने होंगे अफराद? 8। जिसमें देखने हकीकी बहन को सुदस का मिलता है। हकीकी बहन नहीं, पोती को और अलाती बहन, पोती और अलाती। जब एक बेटी हो मैयत की, हाँ, बेटा ना हो और एक बेटी निसब ले लेती है और पोती के साथ पोता नहीं है जो उसको असबा बनाए, तो अगर पोती है वो 1 हो या 1 से ज़ायद हो तो बेटी निसब लेगी, पोती के लिए सुदस बचता है। इसी तरह हकीकी बहन अगर 1 है, ठीक है, और उसको मिला निसब, तो अब जो अलाती बहन है वो अगर 1 है या 1 से ज़ायद है तो निसब तो बहन ने ले लिया, तो इनके लिए क्या बनेगा? सुदस मिलेगा। तो 1 होगी पोती और 1 होगी अलाती बहन। अब इधर आज माँ को सुदस मिलता है जब रिश्ता का 1 फर्द हो या रिश्ता कुव्वत के 2 फर्द हो। खियाबी भाई बहन को सुदस मिलता है जब 1 खियाबी भाई हो, हाजिब महजूब ना हो। और बाप को सुदस मिलता है कि जब मैयत की औलाद में से कोई हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ठीक है ना, फिर बाप को सुदस मिलता है। और अगर बाप ना हो, जब सही उसकी जगह है तो रिश्ता जुलिया का कोई फर्द है, बेटा बेटी या पोता पोती, सुदस मिलेगा। और जद्दा सही है तो ये मौजूद नहीं है तो इसको भी सुदस मिलता है। तो अब इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो निसब है वो 5 अफराद को मिलता है, 4 ये और 5वां ज़ौज, और रुबो 2 अफराद को मिलता है, ज़ौजा को, सुमन 1 को मिलता है, ज़ौजा को, सुल्सान ये सिर्फ 4 को मिलता है, बेटी पोती हकीकी में जाती बहन, और सुलस से ये तीसरा ग्रुप माँ खियाबी भाई बहन को मिलता है, और सुलस ये पोती अलाती बहन, माँ खियाबी भाई खियाबी बहन, बाप जैसे 8 अफराद को मिलता है। जी, अगर आप ये चीज़ें ज़बानी बयान करना चाहें कि भी ये सुलस कितनों को मिलता है तो आप सोचते सोचते आप गलती खा जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ इसकी मदद से वही हमारा टेबल है उसी तरह का ही, तो ये आसानी से आप इसको समझ सकते हैं।